السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی مسلمانوں کے کچھ فرقوں کے اندر افراتفری پھیل جاتی ہے اور وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ان کاموں کے اوپر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی حکم بھی نہیں ہے اور نہ ہی قرآن پاک کی کوئی آیت ہے، اور بس ایک بات کو لے کے ایک دلیل بنا لیا کہ اہل بیت کے ساتھ محبت ہے تو پھر ایسے کرو۔ یہ شیطان نے دراصل ہماری مات ماری ہوئی ہے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت ہے تو محبت کا ثبوت ہے، تو محبت کا ثبوت رونے سے نہیں ہے، صبر کرنے کے ساتھ ہے، دعاؤں کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک کی آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دکھوں اور پریشانی کے اوپر صبر کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو مردے نہ کہو، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں بلکہ تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ زندہ ہیں اور ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، یعنی اس طریقے سے زندہ نہیں ہے جس طریقے سے ہم زندہ ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اس طریقے سے، مطلب یہ نہیں کہ وہ قبروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے خود ہی واضح کر دیا کہ آپ نے اپنی اٹکلیں نہیں جڑانی، تمہیں ان کا شعور نہیں ہے، تمہیں نہیں پتا کس طریقے سے زندگی وہ پا رہے ہیں۔ شہداء زندہ ہیں۔ اگر ہمارا یہ یقین ہے کہ وہ شہداء میں شامل ہیں، امام حسن و حسین شہداء میں شامل ہیں، تو پھر ان کا ماتم جو ہے وہ کرنا سراسر جو ہے وہ ظلم اور زیادتی ہے۔ لیکن ان کی جو زندگی ہے، شہداء کی جو زندگی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے وہاں خرد و نوش پا رہے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہیں اور جنت میں جس جگہ چاہیں چلتی اڑتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں جو عرش کے نیچے لٹک رہی ہیں۔ ان کے رب نے ایک مرتبہ انہیں دیکھا اور ان سے دریافت کیا کیا اب تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا اللہ ہمیں تو نے ہر وہ چیز دے رکھی ہے جو کسی کو نہیں دی، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں پھر تو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب بار بار پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بس دوبارہ زندگی دے دیں، ہم دنیا کے اندر جائیں، تیرے رستے میں شہید ہو کے آئیں، اور وہ مزہ جو شہادت کے وقت آیا تھا وہ مزہ دوبارہ لیں۔ تو قرآن تو ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ شہداء زندہ ہیں، تو زندوں کا ماتم تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہہ دو ان غم حسین منانے والوں سے مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، ہے عشق اپنی جان سے بھی زیادہ آل رسول سے، پر یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے، روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم یوں زندہ ہو جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ اگر وہ زندہ ہے تو پھر ماتم کیسا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے نوح و ماتم کیا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ صحابیات فرماتی ہیں کہ جب ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیعت کی تو کئی مختلف حدیث کے اندر مختلف باتیں آتی ہیں، تو اس کے اندر یہ بھی ہے کہ شرک نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، نوحہ و ماتم نہیں کریں گی، اور کئی جگہ پہ یہ ہے کہ اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی، اور اس کے علاوہ اور بھی ہے بہتان نہیں لگائیں گی، اس کے علاوہ اور بھی کئی حدیث کے اندر یعنی اور مختلف باتیں بھی ہیں۔ اور اس کے اندر جو ایک چیز ہے مشترک وہ یہ ہے کہ وہ ماتم نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر اس طرح کے بڑے دور آئے کہ بہت ہی زیادہ غم نے نڈھال کر دیا ان کو۔ کیا ہمارے نبی نے ماتم کیا؟ غزوہ بدر کے اندر 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، یہ کوئی چھوٹا کام تھا؟ استغفر اللہ، یہ کوئی چھوٹا کام تھا؟ لیکن ہمارے نبی نے
मातम नहीं किया, और मना किया गया, जो लोग रो रहे थे उनको मना किया। अम्मा जी आशा फरमाते हैं कि जब ज़ैद बिन हारसा हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा की शहादत की खबरें आईं, ये गज़वा मौता की बात है, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम इतने गमज़दा थे, इतने परेशान थे कि गम के आसार आपके चेहरे से वाज़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे, और मैं दरवाजे के सुराख में से देख रही थी। यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम बारसान में थे, बार बार लोग आ रहे थे, कह रहे थे, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। इतने में एक साहिब आए और आके कहने लगे, अल्लाह के रसूल, जाफर के घराने वाले सब्र नहीं करते। आपने फरमाया, जाओ उनको कहो सब्र करो, सब्र करो। अच्छा, वो बंदा दोबारा आ गया थोड़ी देर के बाद और आके कहा, अल्लाह के रसूल, जाफर के घराने वाली औरतें सब्र नहीं करते, मैंने आपका पैगाम दिया। आपने फरमाया, जाओ जाके दोबारा पैगाम दो उनको। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पैगाम भेजा, सब्र कर जो, अल्लाह अजर देगा। तो फिर वो आदमी तीसरी दफ़ा दोबारा आ गया। अम्मा जी आयशा फरमाती हैं, मैंने देख के कहा कि वो लोग मानेंगे तो नहीं, यानी इनके पास कोई हालत तो नहीं है, लेकिन नबी पाक को बार बार परेशान कर रहे हैं। उसने फिर कहा, अल्लाह के रसूल, जाफर के घराने वाले हमसे सबकत ले गए। आपने फरमाया, जाओ उनके मुंह में मिट्टी डाल दो। यानी इतनी सख्ती से मना किया गया, मरने वालों के ऊपर रोना, और फिर खास तौर पे शहादत जिनकी हो चुकी उनके ऊपर रोना। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मैयत पर मातम करने वाले को डंडों से मारते थे, पत्थरियां फेंकते थे, मिट्टी डालते थे उनके मुंह में कि खामोश हो जाओ, नहीं अब रोना, नहीं मातम करना। हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की बेटे की वफ़ात हुई, उनके बेटा इब्राहीम, उनकी वफ़ात हुई। हमारे नबी ने अपने हाथों में उठाया हुआ, आंखों से आंसू जारी हैं, दिल निढाल है। तो सहाबा कराम भी रोने लगे, कहा, अल्लाह के रसूल, आप भी रो रहे हैं। आपने फरमाया, ये इंसान गोश्त और खून का लोथड़ा है, खुशी और गम से मुतासर होता है। कहा, इब्राहीम, तेरी जुदाई का गम तो है, लेकिन तेरे बाप के मुंह से वही बात निकलेगी जो अल्लाह को पसंद होगी। तो आंखों से आंसुओं का जारी हो जाना ये एक अलग बात है, ये माफ है, लेकिन मातम बयान करना, रोना, पीटना, वावेला करना, ये नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है। अब देखिए, हजरत हमजा की शहादत जिस तरीके से हुई, इतना जो है वो दिलसोज वाकया कि जालिमों ने जिस्म का अंग अंग काट दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया सारे जिस्म को, कान काटे, हाथ काटे, नाक काटा, कितना जो है वो जुल्म किया। तो मातम फिर उस वक्त करना चाहिए था। और नबी करीम अलैहिस्सलाम की बहुत मोहब्बतें थी हजरत हमजा के साथ। इस्लाम के अंदर मातम करने की गुंजाइश ही नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नूहा और मातम करने वाला और बेसब्री का मुजाहरा करने वाला फलैसा मिन्नी, हम में से नहीं है। फलैसा मिन्ना या मिन्नी, हम में से नहीं है। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला ने एक दफ़ा बीमार पड़ गए, तो उनका सर जो था उनकी बीवी की गोद में था। तो जब देखा कि बीमारी की वजह से उनके ऊपर गशी तारी हो गई है, तो बीवी जो है वो चीख चीख कर रोने लगी। अबू मूसा अशरी उस वक्त तो ना कुछ बोल सके, लेकिन जब कुछ अफाका हुआ तो कहने लगे, मैं भी उससे बेजार हूं जिससे अल्लाह के नबी बेजार थे। और बेशक नबी करीम अलैहिस्सलाम ने गम के वक्त चीखने चिल्लाने वाली, सर मुंडवाने वाली और गिरेबान चाक करने वाली औरतों से बेजार हैं। और एक रवायत के अंदर आता है कि
नूहा सुनने वाली और नूहा सुनाने वाली दोनों के ऊपर लानत है। अस्तगफिरुल्लाह। तो जब हमें गम पहुंचा, गम का मौका आया, तो हमने दीन को, इस्लाम को क्यों छोड़ दिया? हमने रहनुमाई क्यों ना ली? कुरान से रहनुमाई क्यों ना ली हमने? अहादीस से रहनुमाई क्यों ना ली हमने? क्या हमारे पास सिलेबस नहीं था? हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जलील कदर सहाबी थे। फरमाने लगे कि जब मैं फौत हो जाऊं तो किसी को मेरे पास आने की इजाज़त ना दी जाए। मैं डरता हूं कि कोई इस तरह का ना हो कि आहो बका शुरू कर दे। और मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आहो बका करने से मना फरमाया है। और एक रवायत में है कि नूह मातम करने की वजह से मैयत को अजाब होता है। जो अजीबुल मैयत बि बुकाइल हय्य अलैह, के लेकिन वो उसको होता है जो क्या कि क्या हो कि मेरे मरने के बाद मेरे ऊपर मातम करना, उस मैयत को अजाब होगा। तो मैयत को भी अजाब से बचाना है। इस तरह की वसीयत अगर कोई कर भी गया है तो फिर भी नहीं उसके ऊपर अमल करना, क्योंकि ये गैर शरई वसीयत है। अल्लाह अकबर कबीरन कबीरा। मुसलमानों के अंदर आज कितने फिरके बन गए। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है वला तफर्रकू फिद्दीन, दीन के अंदर फिरके नहीं बनाने। और आपने फरमाया था कि एक ही फिरका हक पे होगा, एक ही ग्रोह हक पे होगा। मा अना इलैहि व अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे रास्ते पे होगा, मेरे सहाबा के रास्ते पे होगा। तो आज हम कम अज़ कम इतना तो देख सकते हैं कि हम नबी के रास्ते पे हैं कि नहीं, और कम अज़ कम नबी के सहाबा के रास्ते पे हैं कि नहीं। और हमारे पास क्या कुरान काफ़ी नहीं है? आइए कुरान पाक का एक और मकाम सुनते हैं। अल्लाज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और वो लोग जिनके ऊपर मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो वो कहते हैं ये अल्लाह ही की तरफ से है और हम भी अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले हैं। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम, उन्हीं लोगों के ऊपर अल्लाह ताला की रहमतें हैं, शाबाशें हैं, बशारतें हैं, व रहमतन, और रहमतें हैं अपने मिर रब्बिहिम, अपने रब की तरफ से। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और वही लोग हदायत पाने वाले हैं। कौन लोग हदायत पाने वाले हैं? जब मुसीबत आई तो अल्लाह ही की तरफ लौटा दिया कि ये उन्हीं की, अल्लाह की तरफ से है और हमने भी उधर ही जाना है, और सब्र किया है। कुरान पाक के अंदर है वस्ताईन बिस्सब्रि वस्सलाती, सब्र करो, सब्र मदद लो नमाज के साथ। अगर तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी आ गई तो सब्र जो नमाज के साथ सब्र लो। वइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशीन, ये है तो बड़ा काम, लेकिन खुशू खुजू करने वालों के लिए ये मुश्किल काम नहीं है। हमारे पास कुरान का रास्ता अल्लाह के नबी फरमा के गए हैं, हदीस का रास्ता फरमा के गए हैं, बता के गए हैं। आपने फरमाया एक हाथ में मेरा कुरान होगा, दूसरे हाथ में मेरा फरमान होगा। एक हाथ में अल्लाह का कुरान होगा, दूसरे हाथ में मेरा फरमान होगा, तो आप कभी गुमराह नहीं होंगे। एक हदीस में नबी करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया सब्र इंद सदमतिल उला, ये बुखारी की हदीस है कि सदमा तो सब्र तो सदमे के शुरू में होता है, और जो इतनी देर बीत जाए सदमे को, उसको दोबारा फिर उजागर किया जाए। और ये भी एक चीज़ है कि 3 दिन से ज़्यादा अफसोस किसी की मौत का ना किया जाए सिवाय बेवा औरत के, वो 4 महीने 10 दिन सोग बनाए। तो बेवा औरत का भी 4 महीने 10 दिन है। सब्र के अंदर बहुत ज़्यादा बशारतें हैं अल्लाह ताला की तरफ से।
اور बेसब्री के ऊपर कोई भी शर्त भी नहीं है, मातम के ऊपर कोई भी शर्त भी नहीं है, मातम के ऊपर कोई भी दलील नहीं है। हजरत अनस रावी हैं एक हदीस के कि अबू तलहा का बेटा बीमार हो गया और उसका इंतकाल हो गया, बीमार होकर इंतकाल हो गया। उस वक्त अबू तलहा घर में नहीं थे, शायद वो दूर गए थे या शायद वो एक दिन के लिए गए थे, रात को आए। तो उसकी बीवी ने क्या किया, बच्चे को लपेट के एक साइड पे कपड़ा डाल दिया, और जब हस्बैंड घर में आया तो पूछा कि बच्ची की तबीयत ठीक है, तो कहने लगी कि मुझे उम्मीद है कि पहले से बेहतरीन हालत में है। यानी बताया नहीं कि रात का टाइम है, मेरा हस्बैंड कहाँ जाएगा, कहाँ जाके लोगों को तलाएं देता फिरेगा, कहाँ जाके कब्र को दबाता फिरेगा, और फिर सारे दिन का भूखा भी है, अपना खाना खाए आराम करे जिससे भी थका हुआ है। नहीं बताया। रात बीत गई। जब सुबह को नमाज पढ़ने के लिए जाने लगा तो कहा कि अगर अल्लाह ने, अगर किसी ने किसी के पास अमानत रखी हो तो वो अमानत जब मांगे तो दे देनी चाहिए कि नहीं, अल्लाह के बंदी वो तो दे देनी चाहिए। तो कहने लगी कि फिर अल्लाह ने जो हमें अमानत दी थी, अपनी बेटा दिया, तो वो अल्लाह ने ले लिया है हमसे। तो मैंने रात इस वजह से नहीं बताया था तुम्हें कि कहाँ फिरेगा इस टाइम, लोगों को दिखाता और कैसे फिर मसला हल होगा। उस खामद को गुस्सा आ गया, उसने जाके हमारे नबी की दरबार में शिकायत कर दी कि अल्लाह के रसूल इस तरह क्या किया मेरी बीवी ने और मुझे गुस्सा बड़ा है। आपने फरमाया अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने भी मेरी उम्मत के अंदर इस तरह की एक औरत पैदा की जिस तरह की बनी इसराइल के अंदर एक साबरा औरत पैदा की थी। यानी बनी इसराइल के अंदर इस तरह की एक साबरा औरत थी। तो उस साहबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल हमने तो खलवत भी की है, मुझे पता नहीं था कि घर में ये मसला है। तो आपने फरमाया अल्लाह तुमको इस रात, तुम दोनों को इस रात में बरकत देगा, या फिर बरकत दे, दुआ कर दी उनके लिए। तो फिर हदीस पाक के अंदर आता है कि अल्लाह ताला ने उनको 9 बेटे अता फरमाए थे, 9 के 9 ही कुरान के आलम या हाफिज थे या आलम थे, यानी नेक सीरत बेटे अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाए, जो सब के सब भी कुरान के आलिम थे। तो इससे मालूम क्या होता है, अहादीस से, कुरान की आयात से मालूम क्या होता है, सब्र सब्र सब्र। अल्लाह के हर काम के अंदर हिकमतें, अल्लाह के हर काम के अंदर अल्लाह की पोशीदा हिकमतें, उनको हम नहीं समझ सकते। वो काम क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा क्यों ना हुआ, वो अल्लाह ही जानते हैं। जब वो कारियों की एक जमात, 70 कारियों की एक जमात जब वो लेके वो एक बेईमान चला गया था कि ऊपर से वो काफर थे, अंदर से वो काफर थे, ऊपर से वो मुसलमान बन गए, और कहा कि बेहतरीन कारियल कुरान हमारे साथ भेज दें ताकि हम अपने इलाकों में भेजें इनको, और वहाँ जाके तुम्हारा पैगाम पहुँचाएं, अल्लाह का पैगाम पहुँचाए। और रास्ते में जाके उनको 70 को ही शहीद कर दिया था। ये कोई छोटा सदमा था। सदमात बड़े बड़े आए, अंबिया के ऊपर भी, सहाबा कराम के ऊपर भी। जब हमारे नबी दुनिया से रुखसत हो गए तो अम्मा जी आयशा फरमाती हैं कि जब कदालों की आवाज़ आई, कब्र खोद रहे थे सहाबा कराम, तो कदालों की जब आवाज़ आती तो हमारे वो कदाल हमारे कलेजों के ऊपर भी चल रहे थे, हमारे कलेजे छिलनी हो रहे थे वो कदालों की आवाज़ से। यानी वो कब्र खोद रहे तो हमारे भी साथ ही सीने जो हैं वो भी साथ ही खोदे जा रहे थे। जब उन्होंने मुसीबतों को, परेशानियों को इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह के बर्दाश्त किया, तो आज हम उनसे सबक लेने वाले, हम इन चीज़ों की ताबेदारी क्यों नहीं करते, इन बातों की ताबेदारी क्यों नहीं करते? क्या हम नबी से भी आगे निकलने की कोशिश करते हैं? अगर हम नबी से भी आगे निकलने की कोशिश करते हैं तो फिर तो हमारा ईमान बेकार है। और अगर फिर हम कहते हैं कि नबी ने ये काम हो नहीं सका, अब हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं, अस्तगफिरुल्लाह, तो नबी को हमने क्या समझा है? क्या अल्लाह को नहीं पता था कि ये हादसा होने वाला है? नबी क्यों ना बता के गया दुनिया के अंदर कि ये काम इस तरह हो जाएगा तो फिर आपने इस तरीके से करना है?
اگر اپنے پاس سے ہی ایک آپ مثال لے لیں اور اسی کے اوپر آپ جو ہے وہ ایک دین کھڑا کر کے رکھ لیں تو یہ کیسے پھر دین تصور ہوگا؟ دین تو اس دن مکمل ہو گیا تھا جب حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 1.25 مجمع سے خطاب فرمایا تھا. آپ نے فرمایا تھا یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے اور تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام، اور اسلام کو تمہارے اوپر دین بنا کے میں راضی ہو گیا ہوں. تو پھر اب جو انسان اسلام سے ہٹ کے چلے گا تو وہ دین تصور نہیں کیا جائے گا. آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد ابوبکر صدیق آئے، عمر فاروق آئے، اس کے بعد عثمان غنی آئے، اس کے بعد حضرت علی آئے، اور اس کے بعد پھر معاویہ آئے، اور کچھ دیر حضرت حسن کی بھی حکومت رہی کچھ وقت اور کچھ جگہ پہ کچھ علاقوں کے اوپر. پھر انہوں نے رضامندی سے معاویہ کے سپرد کر دی. تو معاویہ نے بلا شرکت غیر 20 سال حکومت کی. تو ان کا اتفاق تھا تو حکومت کی تھی نا انہوں نے. جب ان کے سپرد حکومت، دشمنوں کو سپرد تو کوئی نہیں کرتا. کچھ ان کے ساتھ شریعت میں اتفاق تھا تو حکومت ان کے سپرد کی تھی. اور یہ تقریباً اس کے اندر کتنے سال لگ گئے، تقریباً کوئی 56-57 سال کے بعد کی یہ بات ہے، یہ معاویہ کا دور. اور حضرت حسن حسین یہ واقعہ کربلا جو ہے یہ کتنے سالوں بعد کی بات ہے. تو اتنے سالوں کے بعد اگر کوئی واقعہ ہو جائے اور اس کو ایک دین بنا کے کھڑا کر دیا جائے اور اس کے اوپر ایک دین کی عمارت رکھ دی جائے، یہ اسلام کے ساتھ سراسر زیادتی اور ظلم ہے. اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے اور اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام پہ عمل کرنے والے بنا دے اور تفرقات سے بچا کے اللہ ہمیں صحیح وہ صراط مستقیم جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا، سورۃ فاتحہ کے اندر ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ صراط مستقیم اللہ کی ذات ہمیں دکھا دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.